Hi goodies, welcome back to my channel. This is Mia for Kalkriman and this is my channel Dream's Kingdom. So guys, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं इन इंग्लिश. मैं आपको समझाऊंगी इन हिंदी. So वो चैप्टर है 1 less than 100. So guys, let's get started. So guys, ये कहानी है होजा के बारे में. Okay guys, so let's get started without wasting any time. Nazdir Hoja woke up early in the morning and quickly got ready for his prayers. Allah, please give me 100 gold coins. 99 will be not enough. 100 gold coins is what I want. If you give me 99 gold coins, I will not accept it, said the Hoja. In fact, this was his daily routine. Every single day, the Hoja cannot in his courtyard and prayed hard for the God's blessing in the form of gold coins. Okay guys, एक अंकल थे होजा करके. वो हमेशा जल्दी उठ के बहुत ही जल्दी लाइक 2-3 बजे उठ के वो बहुत ही जल्दी रेडी शेडी होके अल्लाह से दुआएं मांगता था. और क्या मांगता था पता है? भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरे को ना 100 गोल्ड कॉइन्स दे दो. अगर आपने मेरे को 99 गोल्ड कॉइन्स दिए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. वो तो इनफैक्ट वो तो रोज़ करता था, रोज़. सो उसके बाद एवरी सिंगल डे होजा जल्दी रेडी होके अंदर चला जाता था कोर्टयार्ड के अंदर. और उसके बाद उसके गॉड ब्लेसिंग्स के लिए वो व्हाट वी से ब्लेसिंग के लिए फॉर्म ऑफ द गोल्ड कॉइन्स मांगता था. सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं. Okay guys, so next paragraph. The Hoja's neighbor, a rich merchant called Nazir, had been watching and hearing him day after day. So one day he thought he would try to see if the Hoja really meant what he said. So the next day, Nazim put 99 gold coins into a bag and waited quietly behind the chimney of his terrace. The moment the Hoja came into his courtyard for his prayer, he threw the bag of coins down into the courtyard. Taken aback, the Hoja carefully picked up the bag. Okay, so दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा है? होजा का नेबर मीन्स पड़ोसी, उसका नाम नसीम था. वो हमेशा उसको देखता था और सुनता था उसकी प्रेयर्स को. उसके बाद उसने सोचा कि अगर मैं 99 गोल्ड कॉइन्स बैग में डाल के वहाँ पे फेंक दूँ तो वो क्या सच्ची में चाहता था वो कहेगा. सो उसके बाद वो उसके हाथ में लिए 99 गोल्ड कॉइन्स और चुपचाप होजा के जो टेरेस है ना उसके ऊपर चिमनी के बाजू में बैठ गया. और जैसे ही होजा बाहर आया और उसने वो बैग को डाल दिया ऐसे कर. ओके, उसके बाद जैसे ही होजा ने उसको धीमे से उठाया और खोला तो क्या दिखा उसको, मैं बताती हूँ. He was pleasantly surprised when he opened the bag and saw the gold coin. Naturally, he started to counting and found only 99 gold coins. So he sat down with a deep sigh. He knew that God would not listen to him in total silence. Okay. उसके बाद जैसे ही उसने खोला वो इतना खुश हो गया, हे भगवान. तो उसने जैसे ही ओपन करके बैग ढूंढा तो 99 गोल्ड कॉइन्स थे. सो गाइस, वो नेचुरली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 99 ऐसे डायरेक्ट कर दिया. और उसके बाद 99 नहीं मिले. उसने बहुत ही धीमे से नीचे बैठा
डीप ब्रेथ डीप आउट की, और उसके बाद उसने दिमाग में बोला कि गॉड मेरी सुनेंगे ही नहीं, मेरे को पता था, इसलिए वो टोटल साइलेंस में नहीं सुनेंगे. So he said loudly, "Oh merciful Allah, you have answered my prayer partly. Maybe you just forgot that the coin should have been 100 in number. However, it does not matter at all. You can give me the last coin tomorrow." उसके बाद उसने बहुत ही जोर से बोला, "ओ सरस्वती भगवान अल्लाह, मेरे को पता चल गया कि आपने मेरा जवाब दे दिया ऑफ माई प्रेयर्स, पर आप में भी भूल गए कि जो कॉइन्स होने चाहिए वो 100 इन नंबर होने चाहिए." तो उसने बोला कोई बात नहीं, कल एक कॉइन दे देना. The Hoja put the 99 coins back into the bag and went inside. Nazim was now at a loss. Not at a loss. The Hoja, it seems to him, determined to keep the 99 gold coins. This made him nervous. After thinking over it all morning, Nazim went to the Hoja and said, Good sir, many greetings. Please give me back my bag of gold coins. I threw it down only to see how you would react. It was just a joke. I'm very sorry. So guys, उसके बाद जो होजा थे ना, उसने पूरे वो गोल्ड कॉइन्स अंदर डाल दिया. गाइस, आपको फन भी कराऊंगी और समझाऊंगी. सो गाइस प्लीज. सो गाइस, उसके बाद होजा ने बैग में डाल दिया, और उसके बाद नजीम लॉस्ट में था. वो सोचा कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सोचा था वो तो नहीं लेगा. उसके बाद वो पूरे सुबह थी सोचता रहा, और बपोर आई तो वो उसके घर पे गया. अच्छा सर, अच्छे सर, बहुत ही शुभकामनाएं. उसके बाद उसने बोला मेरे को प्लीज मेरे कॉइन्स मेरे को वापस कर दो, वो मेरे थे, वो मैंने डाले थे, मेरे को देखना था बस आप कैसे रिएक्ट करोगे. मैंने जस्ट मजाक किया था, प्लीज मेरे को माफ कर दो. What are you talking about? Are you joking? You have never given me any money to me, was the Hoja's answer. Come, learn, sir. Though I am not be as learned as you are, I am not completely an idiot. Hearing your plea to God for the 100 gold coins, I threw down that bag of coins at your feet. They are mine, and no man can take them away from me. He shrugged his shoulders and said, I cannot understand, Nazim. How can you be so sure that you gave them to me? So उसके बाद होजा ने बोला, तू किसकी बात कर रहा है? तू क्या मजाक कर रहा है? उससे बोला तूने मेरे को कभी भी पैसे नहीं देंगे तो क्या खाक में देगा? Okay, he said like that. Was the Hoja's answer. Hoja's answers उसका था. और उसके बाद बोला अच्छा इधर आओ लॉन्ड सर, अच्छे सर, मैं भी आपके जैसा अच्छा नहीं होऊंगा, पर मैं पूरा कंप्लीटली बुद्धू तो नहीं हूँ. मैंने सुना कि गॉड से तुम प्रे करते हो, वो मैंने फेंके थे, वो मेरे हैं. उसके बाद होजा श्रग्ड अपने होजर्स करके बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो, और तुम ऐसे कैसे श्योर हो सकते हो, इतना ज्यादा श्योर कि वो तुम्हारे ही हैं.
उसके बाद आगे की स्टोरी बढ़ती है. द मर्चेंट kept repeating that it was he who had thrown the bag of coins, but the Hoja did not listen to him. He said the money was his and had come to him as an answer of prayers to his prayers. Okay. Then Nazim was almost in tears. He said, I shall take you to court for robbing me of my money. Stroking his beard in a thoughtful manner, the Hoja said, I am most willing to go to the court with you. The merchant wanted to go at once. Okay guys, मैं इतना समझा देती हूँ आपको. उसके बाद नजीम बार बार बोलता रहा कि वो मैंने डाले थे ऐसे करके, ऐसे ऐसे. उसके बाद वो ना होजा ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कार बंद करके बैठ गया. और उसके बाद होजा बोलता है जो मनी दिए है ना वो भगवान ने दिए हैं, भगवान ने, ऐसे. और उसके बाद नजीम था ना, नजीम वो अपने आंसू टिपका ही रहा था. उसके बाद उसने बोला कि मेरे को तेरे को ना कोर्ट पे लेके जाना पड़ेगा. तूने मेरे पैसे चुराए ना मेरे से, इसलिए हो जैसे स्ट्रोकिंग बियर्ड करके सोच थॉटफुल मैनर से सोच रहा था. उसके बाद उससे बोला हाँ मैं भी आता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है. नजीम वांट टू गो एट वंस, पर नजीम को है ना एक ही बार में झटके में चला जाना था. बट द होजा सेड आई एम नॉट young as you. I once was and cannot walk all the way. Eager to get his hands on his money as soon as possible, Nazim went into his house and brought a sturdy donkey. Here you can ride this donkey. I will find myself another one. But let's leave at once. A little satisfied, but not completely. The Hoja found another excuse. How can I appear here before the judge so shabbily dressed? It would be very disrespectful. Okay. उसके बाद होजा ने बोला पर मैं तुम्हारे जितना इतना यंग नहीं हूँ, मेरे को वॉक करना नहीं आ रहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ. तो उसके बाद नजीम को अपने पैसे चाहिए थे, तो वो जितना पॉसिबल होता है उतना रन करके गया और एक स्ट्रॉन्ग डोंकी लेके आया. पर उसके बाद जो था ना वो थोड़ा बहुत ही सेटिस्फाइड था, बहुत ही कम. उसके बाद पूरा नहीं था, बिकॉज उसके पास कोई कपड़े ही नहीं थे होजा के पास. उसके बाद उसने अनदर एक्सक्यूज लिया कि मैं कैसे ऐसे जज के बाजू में इतनी बुरी कंडीशन में आ सकता हूँ. वो बहुत ही गंदा चीज़ होगी ना, गंदी चीज़ होगी. Nazim was set on talking the Hoja to court, so he went back home and brought a new silken dress and a fur coat for the Hoja to wear. उसके बाद नजीम को टॉक करना था in the Hoja with the Hoja in the court, so वो फटाफट जितना फटाफट भाग के गया इससे. और उसके बाद वो उसके लिए सिल्क का ड्रेस लेकर आया और सिल्क का फर कोट भी लेकर आया. उसके बाद एट द कोर्ट Hoja the judge asked them what the matter was. Nazim told him the story and Hoja stood stroking his beard all the time. उसके बाद वो कोर्ट में गए ना, जब राजाओं का महल होता था वहाँ पे गए, और उसके बाद उससे नजीम ने पूरी स्टोरी बता दी कि ऐसा सब कुछ हुआ. और होजा ऐसे कमर में बांध के ऐसे करता रहा, ऐसे.
कैन यू सी बियर्ड होती है, वैसे ऐसे ऐसे करता रहा। ओके गाइस, उसके बाद आफ्टर द मर्चेंट हैज फिनिश्ड द होजा क्लियर्ड दिस थ्रोट वंस एंड स्पोक टू द जज। उसके बाद जब नजीम ने खत्म कर दिया ना, उसके बाद उसने बोला, योर एक्सीलेंसी नजीम इज माई नेबर। I have seen him standing on his terrace and watching me pray. He may have seen me counting the gold coins that God gave me today. Right now he is trying to be smart. He wants to grab the money that the benevolent one has given me. उसके बाद वो बोलता है, आपकी मैजेस्टी सर, नजीम मेरा पड़ोसी है और वो बालकनी में खड़ा उस मेरे को देखता होता है हमेशा प्रे करते हुए, तो मैं उसने देखा होगा कि मैं गोल्ड कॉइन्स काउंट कर रहा होगा। उसके बाद गॉड गिव मी, जिससे मेरे को भगवान ने मेरे को आज दिए। उसके बाद क्या हुआ, अभी वो है ना बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ग्रैब करने हैं मेरे मनी जो भगवान बेलवेंट वन ने दिए। और आप सोच रहे हो कि बेलवेंट वन का मतलब क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। उसका मतलब होता है भगवान मीन्स गॉड। Then Nazim replied, believe me, my lord, the coins are mine. I never tell a lie. Hearing him pray for 100 coins है। अगर आप 100 coins लिखोगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा, इसमें 100 coins लिखे हैं, पर we will say 100 gold coins and only 100 gold coins daily. I threw 99 gold coins down into the courtyard to see what he would do if he got one coin less than what he had prayed for. उसके बाद नजीम ने बोला, जज मेरे को बिलीव करो, जज मेरे को बिलीव करो, मैंने उसको देखा, पर मैं कभी भी लाई नहीं बोलता, झूठ कभी नहीं बोलता। मैं उसको प्रे करते हुए सुनता हूँ कि मेरे को 100 गोल्ड कॉइन्स दे दो भगवान। ऐसे अल्लाह लोग ऐसे करते हैं, 100 गोल्ड कॉइन्स दे दो भगवान। उसके लिए मैंने 99 गोल्ड कॉइन्स फेंक दिए। और मेरे को देखना था कि अगर उसको एक सिक्का कम मिले तो क्या होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। माय लॉर्ड, नॉट ओनली इज नजीम स्मार्ट बट ही इज ऑल्सो क्रूड. He often does things like this. Next, he will probably say that the clothes I am wearing are also his, but they are mine, cried the merchant, raising his voice. I gave them to him to wear to coat today, the fur coat and the silk dress, they are all mine. उसके बाद होजा बोलता है कि जज, पता है नजीम स्मार्ट तो है पर वो क्रूक्ड भी है। आप सोचोगे क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। क्रूक्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन बहुत ही गंदा इंसान। उसके बाद वो बोलता है वो ऐसी ही सारी चीज़ें करता होगा। उसके बाद वो कहेगा जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ वो भी उसके ही हैं, और वो नजीम रो रहा था, रो के उससे आवाज़ उठाई कि वो मेरे हैं, मैंने उसको सिल्क ड्रेस और फर कोट दिया था। उसके बाद सी my lord, you see my lord, broke in Hoja, shrugging his shoulder. Next he will say that the donkey I am riding is also his. Everyone knows that I have a donkey, my own donkey. I have my own donkey, said the Hoja. उसके बाद वो बोलता देखा देखा लॉर्ड देखा। उसके श्रग ऐसे ऐसे कर शोल्डर्स, ये शोल्डर्स होते हैं,
ऐसे कर रहा था, श्रग कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है नेक्स्ट वो बोलेगा कि जो मैं डोंकी राइड करके आया हूँ ना वो भी उसका ही है। वो पर उन सबको पता है, गाँव वाले को सबको पता है कि आई हैव अ डोंकी। हो जाने कहा he did not have one, shouted the merchant beside himself with rage. The judge could take it no more. उसके बाद होजा ने बोला कि उसके पास नहीं है। उसके बाद मर्चेंट ने जोर से बोला नाउ बिसाइड हिमसेल्फ। आज सोच रहे हो कि बिसाइड हिमसेल्फ मतलब क्या होता है? हियर ओवरकम विथ एंगर, मतलब गुस्से से बोलना। उसके बाद विथ रेग मतलब सुना एक्सट्रीम एंग्री से बोला। उसके बाद जज ने कुछ लिया ही नहीं। उसके बाद आई हैव नेवर सीन सच अ रफ इन ऑल माई years in this court. How dare you access an honest and respectable man? Your greedy nature will lead you to disaster. Complaint dismiss. Take him away. उसके बाद जॉर्ज बोलता है मैंने इस पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा ऐसा इतना रफ। और आप रफ मतलब जानते हो या नहीं? आप तो ऐसे बोलोगे मेरे को रफ मतलब पता ही नहीं है कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ। रफ मतलब होता है पर्सन हू चीट। गाइस आपने कभी एग्जाम में चीट किया? मैंने किया। गाइस मैंने नहीं किया, मैं मजाक में बोलती थी, मेरे दोस्त करते हैं, पर डू नॉट डू इट, ओके। सो गाइस उसके बाद वो बोलता है नजीम को हाउ डेयर यू, तुम ये कैसे कर सकते हो? इतने अच्छे इंसान को, इतने अच्छे और इतना वाइज इंसान को आप कैसे कर सकते हो? तुम इतना ग्रीडी क्यों बन रहे हो? उसके बाद वो ग्रीडी होके बोलता है नेचर तुमको हमेशा डिजास्टर में लीड करवाएगा, मतलब करवाएगा। उसके बाद वो बोलता है ये डिसमिस हो गया। उसके बाद जज ने बोला कि नजीम को ले जाओ। ही डिक्लेयर्ड द गार्ड्स एट द कोर्ट एट वंस पुश द मर्चेंट। उसके बाद उसने बोला कि गार्ड्स को कि इस नजीम को बाहर ले जाओ, नजीम को इस घर से कोर्ट से बाहर कर दो, ओके। सो ओके देन द होजा वेंट होम इन हिज फाइन स्किलन clothes, happily riding on the donkey. He found the miserable merchant sitting on his doorstep. उसके बाद नजीम अपने घर पे अच्छे से स्किलन ड्रेस के साथ हैप्पीली खुशी अपने डोंकी में जा रहा था। उसके बाद उसने देखा कि जो नजीम था वो अपने घर के डोरस्टेप के बाहर बैठा था। The Hoja said not unkindly, now take back your donkey and the dress and the gold coins, neighbor. But remember the lesson I have learned today. You have learned today. Do not at any time tempt an honest man to break his word. उसके बाद वो उसके पास जाता है और होजा बोलता है मैं तो बुरा नहीं हूँ, तुम अपना डोंकी ले लो, अपना सिल्क का ड्रेस ले लो और अपने गोल्ड कॉइन्स भी ले लो, पर पड़ोसी हमेशा याद रखना ये लेसन जो आपने लर्न किया टुडे, और कभी भी और एनी टाइम टेम्प्ट कभी भी मत करना एक अच्छे से ऑनेस्ट मैन अच्छे मैन को उसके ब्रेक हिज वर्ड करना, ओके। So guys, thank you for watching, and guys if you are DPS in Whopper, so comment down below, and guys today you have to subscribe with your middle finger, no, first finger, okay. So I will count till 5, okay. So 1 2 3 4 5. If you have done so, tap on your back. So tab ke liye bye bye guys, love you all, bye bye.
गाइस प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, बिकॉज अगर मैं सब्सक्राइबर्स बनाऊंगी तो मेरे पास एक न्यू वीडियो आने वाला है इन 10 डेज। सो गाइस प्लीज़ वो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।